میں تلاوت قرآن پاک کے لیے فیصل صدار سب سے کہوں گا کہ تلاوت قرآن پاک سے شکریہ فیصل صاحب۔ میں جناب مہمان گرامی ڈاکٹر محمد طاہر زیدی صاحب، ڈاکٹر شہباز صاحب اور دیگر NCC کی ٹیم کے تمام ممبران جو یہاں تشریف لائے، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ادارہ یقیناً NCCA ہماری جو مصنوعات ہے اس کو عالمی معیار بنانے کے لیے، عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ یہ میں تمام پاکستان گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے منسٹری آف کامرس کے تحت بننے والا یہ ادارہ ہماری مصنوعات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے میں ہمارے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، جس سے ہماری مصنوعات کو، ہماری پروڈکشن کو بین الاقوامی طور پر متعارف کرائیں گے اور ہمارے معیار کو بہتر بنانے کی اہم رول ادا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں، میں ڈاکٹر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور مستفید کریں ہم تمام انڈسٹری کو، چیمبر کو، ہمارے بیٹھے مہمان کو۔ شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بریفنگ کر دوں، اس کے بعد پھر ڈیٹیل ہم ان شاء اللہ پریزنٹیشن میں کوئی ساری ڈیٹیلس آپ کے سامنے آتی نہیں کہ یہ ادارہ کیا ہے، ہم لوگ کون ہیں، کیوں آئے ہیں اور کیا کریں گے اور آپ کو کیا سمجھنا ہے۔ یہ ادارہ نیشنل کمپلائنس سینٹر، یہ پچھلے کو 4 سال سے اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس کو بنایا جائے، کس طرح اس کے نیچے رکھا جائے، اس کی شیپ کیا ہونی چاہیے، اور الٹیمیٹلی پھر یہ لاسٹ ایئر اس کا انوگریشن ہوا اور پریکٹیکلی اب سے کوئی 5 سے 6 مہینے پہلے اس نے کام شروع کیا۔ اس کی پوری ایک ایڈوائزری کونسل بھی بنی ہے جس کے اندر تمام منسٹری کے ریپ موجود ہیں، انڈسٹری کے ریپ موجود ہیں، سیکٹورل کمیٹیز کے ہیڈز موجود ہیں، FECCI کے چیئرمین موجود ہیں، HEC کے چیئرمین موجود ہیں۔ اس کی ایڈوائزری کونسل بھی بنائی گئی ہے۔ ایڈوائزری کونسل کا پہلا اجلاس انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر مئی کے مڈ میں ایکسپیکٹڈ ہے، جس میں ہم اس کے فیوچر کے بارے میں سارے ڈیٹیلس کے سامنے آئیں گے۔ اس میٹنگ سے پہلے ہمیں یہ تھا کہ ہم لوگ جا کے جو بڑے بڑے چیمبرز ہمارے ہیں، جس میں کراچی ہے، سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، ان کو جا کے ہم ایک اویئرنیس سیشن کریں تاکہ ان کی نالج بھی ہو کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، انڈسٹری کو کیا فائدہ ہے، آپ کی سیکٹورل ایسوسیشنس کو کیا فائدہ ہے، چیمبرس کو کیا فائدہ ہے، اور ہمیں آپ کی بیسیکلی سپورٹ اور ہیلپ چاہیے کیونکہ یہ ادارہ آپ لوگ کے لیے بنا اور آپ کے تعاون سے یہ آگے چلے گا، اور یہ وہ ادارہ نہیں ہے کہ جو اپنے وقت پہ کمرے میں بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائے گا، یا کوئی تھانے دار ادارہ نہیں ہے کہ آپ کو چھاپا مارے گا، کوئی انڈسٹری بند کرے گا، ایسا اس کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انڈسٹری سے فیڈ بیک لیں، چیمبر سے فیڈ بیک لیں، ان کے پین پوائنٹس کو دیکھیں، اور اس وقت جو پاکستان میں کوئی 2 درجن سے زیادہ مختلف چھوٹے موٹے ادارے کام کر رہے ہیں جو مختلف امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، جیسے انوائرمنٹ والے ہیں، جیسے مختلف جو ہے لیبر والے ہیں، لیبر رائٹس والے ہیں، مختلف لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اس سب کو بھی ہم اس ادارے کے پیچھے لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی ہم مانیٹر کریں اور انڈسٹری سے فیڈ بیک لے کے ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس طرح جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ٹیکنیکل مین پاور ٹریننگ والے ہیں، ٹیپٹا والے ہیں، ابھی نیو ٹیک بھی ہمارے ساتھ پوری طرح شامل ہے، تو ان کو کس طرح کی ٹریننگ چاہیے اور ہم کیا کریں۔ تو لانگ ٹرم تو ہمارے بہت زیادہ آبجیکٹیو ہیں۔ اب کچھ ہمارے امیڈیٹ شارٹ ٹرم کے آبجیکٹیو ہیں، جس کے اندر یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ ایک اویئرنیس دے دیں تاکہ آپ کی معلومات میں ہو کہ ہم لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ہم آپ کو کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر اس ادارے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس میں بیسیکلی یہ ہوا کہ پہلے جو چیزیں آپ کی اس کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں، پہلی بات تو یہاں پہ آتی ہے۔ اس میں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، اسپیشلی جو ایکسپورٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہلے جو چیزیں والنٹری تھیں، پہلے جو ہم لیبر رائٹس کے لیے والنٹری کام کر لیتے تھے، جو کہ انوائرمنٹ اچھا کرنے کے لیے والنٹری کام کر لیتے تھے، اب وہ چیزیں مینڈیٹری بن گئی ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انہوں نے مختلف قانون پاس کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے اب مختلف ایریاز کے اندر آپ ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے
अगर आपने मुख्तलिफ रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, मुख्तलिफ कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं किया। और इसी तरह पहला पॉइंट हमने ये कहा कि पूरी सुनामी आ रही है रेगुलेशंस की, जो कि आ चुकी है। इसमें हमने एक हॉलीडे पीरियड दिया हुआ है, तकरीबन 2 साल का पीरियड है, जिसकी वजह से अभी तक पूरी तरह का अवेयरनेस हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन अब से तकरीबन 2 साल बाद, तकरीबन 2026 के बाद से ये चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी बन जाएंगी, और चीज़ें मैंडेटरी होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो अभी तक कहीं ना कहीं जा भी रहे हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। तो वो चीज़ अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर है उन्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योर करनी है, नहीं तो उनकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। इसी तरह लार्ज स्केल के बजाय अगर हम मीडियम स्केल पे भी आएँ, SME की बात भी कराएँ, तो SME का भी बड़ा मेजर रोल इसके अंदर आता है। अब उसमें जो एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही हैं, उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे SME बना रहे हैं। अब नई रेगुलेशन के मुताबिक ये जो कंप्लाइंसेस हैं ये मैंडेटरी हो गई हैं उनके जो सप्लायर है उनके लिए भी। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो SME पे लागू हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टेक्सटाइल में एक चीज़ है जो एक्सपोर्ट करते हैं, कोई लेट से कोई अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे कोई हमें सूटिंग वाला काम स्टिचिंग करके बाहर बेचते हैं, तो उसमें बेशक कपड़ा जहाँ से भी आए उसकी भी हमें कंप्लाइंस की ज़रूरत है। जहाँ स्टिचिंग हो रही है वहाँ भी कंप्लाइंस की ज़रूरत है, जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ भी कंप्लाइंस की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अभी मैंडेटरी बन गई हैं, तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसका डर ज़्यादा है लेकिन वो खौफनाक है नहीं, और उसी के लिए हम ये बैठे हैं यहाँ पे, आप लोगों की गाइडेंस के लिए बैठे हैं, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बैठे हैं। और हम लोग मुख्तलिफ तरह के ट्रेनिंग सेशंस हमने प्लान किए हुए हैं, पूरी कंट्री में हम फिरेंगे। आपके पास भी हमारा रेगुलर चक्कर लगेगा, महीने में 2 से 3 हमारे चक्कर लगेंगे, तो जहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करेंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर में, सर्जिकल सेक्टर में, जो मुख्तलिफ हमारे सेक्टर, हमने बेसिकली फोकस सेक्टर कोई बनाए हैं, 18 सेक्टर टोटल हैं, जिसमें 7 के ऊपर हम मेन फोकस किया हुआ है, बाकी 11 हमारे डेवलपमेंटल सेक्टर में, उसमें मैं आगे प्रेजेंटेशन सामने आएगा। तो अभी जो हमारे कंप्लाइंस अगर हम नहीं करते तो इसके बगैर हमारे जो इवन इम्पोर्ट्स में भी हमें मसले मसाइल शामिल हो जाएंगे। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब मसले का ये हुआ है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारा बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन्होंने ऑलरेडी चीज़ें या तो काफ़ी हद तक कर ली है या उन्होंने काम इस पर शुरू कर दिया हुआ है। जो चाइना और बाकी जो है उन्होंने तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुई चीज़ें। अगर हम ये चीज़ें अभी नहीं देखेंगे या इसका ध्यान नहीं करेंगे तो हम लोग बिल्कुल एक दीवार के सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसकी हमें अवेयरनेस चाहिए, और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स को या हमारी इंडस्ट्री को किस चीज़ से ख़तरा है, जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल बंद हो सकती हैं। तो उसके लिए इदारा बना ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, ट्रेनिंग कंडक्ट करें, और मुख्तलिफ जो छोटे छोटे हमारे जो इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उन सब के ऊपर एक अम्ब्रेला के तौर पे ऐड करें, और इंडस्ट्री के साथ मिल के ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करें ताकि कंप्लायंस हम बेहतर तरीके से कर सकें। ये सिंपल सा एक आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें ग्रीन की हैं, बाकी चीज़ें सामने हैं। ये सिर्फ अगर हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन को लें, उसमें ये कंप्लायंसेस हैं जो कि रेगुलेशन है जो कि आ चुकी हैं, और उसमें से जो ज़्यादा खौफनाक हैं वो मैंने भी आपको ग्रीन करके दिखाई हैं, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और 2 साल बाद ये मैंडेटरी हो जाएगी। जिसमें ये हमारी जो है डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट एक है। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट नहीं होगा तो 2026 के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो कोई मशीनरी है, चाहे वो कोई टेक्सटाइल है, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। वो पूरी मार्केट आपके लिए बंद हो जाएगी। और ये पूरा एक टेबल आप देख रहे हैं कि ह्यूज चीज़ें हैं। सारी चीज़ें शायद हमें अफेक्ट नहीं करती, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अवेयरनेस ज़रूरी है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे सर पे क्या चीज़ खड़ी है और हमें चीज़ें क्या अफेक्ट कर सकती हैं, और हम क्या करें कि उससे हमारी बचत हो सके या उसको हम अवॉइड कर सकें, या किस तरह कंप्लाइंट हो सके। तो वो चीज़ें अवेयरनेस बड़ा ज़रूरी है। ये बेसिकली उसी रजिस्ट्रेशन जो हमने ग्रीन मैंने किया था उसकी डिटेल दिखी हुई है। अब राइट पे टाइमलाइन आपको नज़र आ रही होगी। इसमें से अक्सर चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, और कुछ हमें विंडो दिया गया है, जो हमें एक पीरियड दिया गया है कि इसके अंदर आप पूरा अपने आप को कर लें। जो कहीं पे 2026 है, कहीं 2027 है, एक आध जगह एक्सटेंशन 2030 तक भी दी गई है, लेकिन उसके बाद से कोई दरमियान में विंडो नहीं है, उसके बाद सब चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। और अगर आपकी इंडस्ट्री है जो कि कई डेकेड से काम कर रहे हैं आप लोग, तो ये चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी फ्यूचर जनरेशन आपकी जो है वो आपको ब्लेम करेगी कि जबकि आपके हाथ में कंट्रोल था तो आपने चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं किया। ये चीज़ें सारी वही चीज़ मैं दोबारा आपको दिखाई गई कि 2024 से ज़्यादा रेगुलेशन इन प्लेस आ चुकी है। 2026 ऑनवर्ड्स कई रेगुलेशन ऐसी हैं कि जो मैंडेटरी होने जा रही हैं, कुछ 2027 में, और 2030 तक तकरीबन तमाम जो रेगुलेशन है, ये सिर्फ EU की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो मैंडेटरी हो जाएंगी। तो वहाँ पे कुछ चीज़ भी आप नहीं बेच पाएंगे।
ایون آپ اس کی جو آپ یہ کہیں کہ فنش پروڈکٹ کی اگر اسمال پارٹ بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اسی کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر ایک بنا جس کا ویژن یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک کمپلائنٹ ریجیم کے ایک لیڈر کے طور پر سامنے رکھیں اور جہاں جہاں مشکلات ہیں اس کو ہم اوور کم کریں, ہم ٹریننگ کنڈکٹ کریں اور جہاں جہاں ہم انڈسٹری کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ان کی سپورٹ میں آئیں. اور یہ مشن میں ہمارے شامل ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق, جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کیسے میٹ کریں گے اور کس طریقے سے ہمارے پروڈکٹس انٹرنیشنل جا سکیں گے. صرف EU مارکیٹ نہیں, پوری دنیا میں, چاہے وہ امریکن مارکیٹ ہے, چاہے وہ فار ایسٹ مارکیٹ ہے, چاہے وہ افریقن مارکیٹ ہے, جہاں جہاں کمپلائنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے نیشنل کمپلائنس سینٹر بنایا گیا. اب یہ رول ہمارا کیا ہے, ہم کس کو سرو کریں گے؟ جو ایکسپورٹرز ہیں ڈیفینیٹلی مین فوکس ہمارا وہ ہوگا, لیکن چند ہمارے امپورٹرز بھی ہیں وہ بھی افیکٹس میں ہوں گے, کیونکہ کئی ایسی ریگولیشنز ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ بھی مینڈیٹری کر دیا کہ اگر وہاں سے ہم نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ان کی کوئی ریکوائرمنٹ سامنے آ رہی ہے, تو وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیا اس پہ بھی ہمیں کوئی ریسٹرکشن لگ سکتی ہے, اور اگر لگ سکتی ہے تو وہ کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو فورن بیٹھے ہیں, جو ہمارے یہاں پہ ہماری مارکیٹ ہے جہاں پہ ہم چیزیں بیچتے ہیں, تو ان کو بھی بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے ہم سے کوئی چیز منگانی ہے یا ہمیں کوئی چیز بھیجنی ہے, ہم ان کو بھی اسسٹ کریں گے. ہم درمیان میں آپ یہ کہیں کہ انٹرمیڈیٹری طور پہ کام کریں گے کہ ہم ان سے بھی بات سنیں, یہاں سے بھی بات سنیں, ریگولیشن کو بھی دیکھیں اور کس طریقے سے ہم کوئی میڈیم وے آپ نکالیں. جو تمام ٹریڈ باڈیز ہیں, تمام چیمبرز ہیں, ان سب کو ہم سرو کریں گے, ان کے ساتھ مل کے ان سے ہم سجیشن لیں گے, اور جہاں جہاں ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے, جہاں جہاں ہم نے فیسلٹی کریٹ کرنی ہے, جہاں جہاں ہم نے کوئی ٹریننگ دینی ہے, اس کو ہم بیسیکلی ہمارا رول درمیان میں آتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے منسٹری آف انڈسٹریز ہے, منسٹری آف انوائرمنٹ ہے, جو ہے انرجی اینڈ انوائرمنٹ کی سیم منسٹری ہے, اس طرح منسٹری آف کامرس ہے. تو ان کی سجیشن کے لیے بھی ہم ایڈوائزر گروپ کے طور پہ کام کریں گے. اگر انہوں نے کوئی پالیسی بنانی ہے یا انہوں نے کہیں پہ انڈسٹری کو اسسٹ کرنا ہے وہاں پر درمیان میں آئیں گے. اکیڈیمیا ایک بڑا میجر رول ہے کہ ہم اکیڈیمیا کو گائڈ کرنے کے لیے, اسپیشلی ٹیکنیکل مین پاور ٹریننگ کے لیے, جیسے ہمارا ٹیفٹا ہے یا ہمارا GTEC ہے, ہم ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم کوئی کورسز کنڈکٹ کرانے ہیں, کوئی ٹریننگ کنڈکٹ کرانی ہے, تو یہ ہم اس کے میں بھی شامل ہوں گے. اب سرٹیفکیشن باڈیز ہیں مختلف جو کہ مختلف اسٹیمپنگ کرتے ہیں, جیسے ہماری FDA ریگولیشن ہے یا ہماری کوئی EU ریگولیشنز ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہم ان کانٹیکٹ ہیں تاکہ ہم ان کی ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھیں اور ہم دیکھیں ہمارے کون کون سے پروڈکٹ کو اسٹیمپنگ دے سکتے ہیں. یہ میڈیکل ڈیوائسز کے اندر ایک MDR آلریڈی لاگو ہو گئی ہے, اور ہمارے جو میڈیکل ڈیوائسز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی اس افیکٹڈ ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم کام کریں گے سرٹیفکیشن باڈی کے ساتھ بھی. اور انٹرنیشنل باڈیز جس میں ورلڈ بینک ہو گیا, جس میں GIC ہو گئے, ان کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ ہے, ان سب کے ساتھ ہم میٹنگ کر چکے ہیں تاکہ ہم ایک ونڈو کے طور پہ ایکٹ کریں, تاکہ ہم جو بھی ہماری انڈسٹری میں امپلیمنٹ کرنا ہے یا انڈسٹری سے ہم نے کوئی ایکسٹرا لیوریج لینی ہے, کوئی ہم نے کوئی درمیان میں ایکسٹرا پیریڈ ایکسٹینشن چاہیے, تو ان سے بھی ہم باتیں کر سکیں گے. کیسے کریں گے یہ سارا کچھ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ہم اویئرنیس ٹریننگ کریں گے, ہم ایڈوکیسی کریں گے, ہم سپورٹ دیں گے سرٹیفکیشن کی اور ریگولیشن کی. اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بہت عرصے سے کمپیوٹر آ گیا ہوا ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہوا ہے, آج کل کلاؤڈ میں سب کچھ آ گیا ہوا ہے. اب آج کل ہماری انڈسٹری کو کیا چاہیے, ڈیجیٹلائزیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیونکہ آج کل ہر چیز کی ریکارڈ کیپنگ امپورٹنٹ ہو گئی ہے, اور ہر چیز کی ریکارڈ کیپنگ کی ویزیبلٹی مانگتے ہیں. جو جہاں بھی آپ کی چیزیں بھیجتی ہیں وہ ویزیبلٹی مانگتے ہیں. ڈیجیٹل پروڈکٹ پاسپورٹ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا, وہ سمپلی ایک QR کوڈ ہے, سمپلی ایک بار کوڈ ہے جس کو آپ نے اسٹیمپ کرنا ہے, جس کو اسکین کر کے آپ کی پوری ڈیٹیلز آ جانی چاہیے کہ مینوفیکچر کس نے کیا, را مٹیریل کہاں سے آیا. اب اس کے لیے پیچھے جو یہاں پہ آپ کو سافٹ ویئر چاہیے, ڈیجیٹلائزیشن چاہیے, وہ کس ٹائپ کی چاہیے, تو بیسیکلی یہ بھی ہم اس کو اسسٹ کریں گے آپ لوگوں کو. یہاں پہ ہم کامن فیسیلیٹیشن سینٹرز وغیرہ قائم کرنے کا ارادہ ہے. ہم ہر چیمبر کے اندر اپنا ایک ڈیسک کریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لانگ ٹرم سب کے ساتھ آئیں گے. 1-2 چیمبرز کا ہم نے آلریڈی اسٹارٹ کر کے دیا ہوا ہے, اور باقی سب کے ساتھ ہی ہم کریں گے. اور کوآرڈینیشن کے لیے فوکل پوائنٹ ہم بنائیں گے کہ ہمارا چیمبر کے ساتھ, ایسوسیشن کے ساتھ فوکل پرسن کون ہوں گے اور کس طریقے سے ہم انٹریکٹ کریں گے. کنسلٹنسی ٹیکنالوجی ایڈوائس کے لیے ہم ہر وقت موجود ہوں گے. ہماری ویب سائٹ کے اندر تمام ڈیٹیلس اور لوگ موجود ہوں گی. اس کے علاوہ ہم نے مختلف ہمارے تھیمیٹک ایکسپرٹس ہیں, ہمارے RAs ہیں جو اس کے اندر ایکسپرٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہر وقت اویلیبل رہیں گے اس کے لیے, آپ کی ایسوسیشنس کے لیے, آپ کی چیمبرس کے لیے, آپ کی انڈسٹری کے لیے, کسی کو بھی کوئی کنسلٹنسی یا ٹیکنالوجی ایڈوائس چاہیے اس کے لیے. اس کے علاوہ پروموٹنگ کمپلائنٹ آرگنائزیشنس, اس کے اوپر ہم کام کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی چیزوں کو کمپلائنٹ کریں. اسٹینڈرڈس ڈیولپمنٹ ایک بڑا میجر چیز ہے. تقریباً ہر میجر کنٹری نے اپنے اسٹینڈرڈس بنا لیے ہوئے ہیں. جیسے کچھ اسٹینڈرڈس ہم جانتے ہیں, جیسے EU ہو گیا یا FTA ہو گیا, سب جانتے ہیں. لیکن کئی ایسے اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ کنٹری نے اپنے بنا دیے. ایون انڈیا نے اپنے کمپلائنٹ اسٹینڈرڈس بنا دیے ہوئے ہیں.
जबकि हमने अभी तक अपने कोई कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स डेवलप ही नहीं किए। तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे और उसमें हमारे इंडस्ट्री की आसानी हो जाएगी कि हमारे अगर अपने स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट होंगे तो हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी से बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो सर्टिफिकेशन हैं वो भी एक्सेप्ट करें। इसके अलावा पॉलिसी लेजिस्लेशन एडवाइस हम करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऑब्वियसली नेशनल इंटरनेशनल कंप्लायंस इश्यूज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग है। ये एक एडिशनल टास्क था जो हमने टेक ओवर किया। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की टीम आई हुई थी जिसने पूरा नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आई थी। इसको हमने ही कंडक्ट किया और कंट्री के अंदर क्या क्या क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ पे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के लिए SGS है, ये ब्यूरो वेरिटास है, मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही हैं। इस तरह हमारी PCSIR लैब है, हमारे मेट्रोलॉजी वाले बैठे हैं, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं उसको भी हम मॉनिटरिंग करेंगे और जहाँ जहाँ कोई कमी ज़्यादती है उसको हम पूरा करेंगे, जहाँ कमी है पूरा करेंगे और जहाँ पे हमें फैसिलिटी लगाने की ज़रूरत है वो भी हम करने का इरादा रखते हैं। कंप्लायंस स्टैंडर्ड में हमने बात कर दी, करेंगे, ट्रेनिंग की बात कर दी, हम करेंगे। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, अब ये चीज़ डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट DPP, ये वही बात जो मैंने की थी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक आपका बार कोड या एक QR कोड हम डेवलप कर दे रहे हैं कि जिसको आप करके ऊपर एक स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री के लिए आसान हो जाए कि किस तरीके से वो करके आराम से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेसेबल हो ताकि उसको माना जाए दुनिया में चीज़ें हम भेज सकें आगे। इसके अलावा जितनी हमारी मुख्तलिफ जगह पे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटी हैं, हम इसको भी स्टॉक ले रहे हैं PCSI के साथ मिल के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिल के हम उसका पूरा एक लॉग बना रहे हैं, उसको हम एक्सेप्टेंस करवा रहे हैं इंटरनेशनल बॉडी के साथ ताकि अगर आपकी कोई लोकल लेबॉर्ट्री इस लेवल की है तो उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो इंटरनेशनली मानी जाए। कंप्लायंस मैटर पर एडवाइजरी बॉडी है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन, प्रमोशन इन्फॉर्मेशन एक्टिविटी, सारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। तो अभी तक हम जो है क्या कुछ कर चुके हैं, हम ऑलरेडी पिछले तकरीबन 5 से 6 महीने हम काम कर रहे हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, हम रात को भी मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के हम मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉडी के साथ भी बैठे हुए हैं, हम नेशनल बॉडीज़ के साथ बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जो हमारे मेजर एसोसिएशंस हैं, मेजर जो हमारे इदारे हैं, हम ऑलरेडी इनके साथ आउटरीच कर चुके हैं। कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे लेफ्ट एंड राइट के ऊपर, इन सब के साथ हम काफ़ी डिटेल में मीटिंग कर भी चुके हैं। उनके साथ मिलकर हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि किस तरीके से हम मिलकर आगे चलेंगे, जिसमें हमारा TTAB भी शामिल है, हमारी सेक्टोरल एसोसिएशंस हैं, इसके अलावा हमने FPC के साथ हम हैं और मुख्तलिफ चैम्बर के साथ हम विजिट कर ही रहे हैं ताकि उनको अवेयरनेस दें। ये विजिट भी उसी सिलसिले का एक पार्ट है ताकि आपको मालूम हो कि हम कौन लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं और उसका आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा। फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ इदारे हमारे प्रोविंशियल भी हैं जो कि इसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम उनके साथ भी मिलकर करें ताकि हम डुप्लीकेशन ना हो और जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, एक वेस्टेज ऑफ एफर्ट ना हो। एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन हमारे साथ है और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलरेडी उससे इंटरेक्शन कर चुके हैं, जिसके अंदर जो मेन टेक्निकल वाली है वो न्यूटेक है, वो हमारे बिल्कुल साथ है। इंटरनेशनल एजेंसी के साथ EU का मैंने जिक्र किया, इनसे हम ऑलरेडी रेगुलर मीटिंग में है। अभी EU का अपना मेजर डेलीगेशन आ रहा है नेक्स्ट मंथ, 40+ का डेलीगेशन है जिसका विजिट पूरी कंट्री में हम प्लान कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह B2B मीटिंग भी कराएंगे। और ये जो मिशन आ रहा है इसका मकसद यही है कि जो EU वाले देखना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे क्या चीज़ें कंप्लाइंट ऐसी हैं जिनके साथ मिलकर वो ट्रेड आगे चला सकते हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने उनको वेलकम किया, वो लोग भी आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का मिशन अभी होके गया है, इसी मंथ उनका विजिट था, अभी रिपोर्ट बना रहे हैं। ये सारा जो बेसिकली मिशन था ये नेशनल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जज करने के लिए था ताकि पाकिस्तान को वो एक रेटिंग दें कि हमारी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है और उसमें क्या क्या कमी आती है। ILO के साथ हम ऑलरेडी मुख्तलिफ ट्रेनिंग हमने साइकिल कंडक्ट करा रहे हैं। एक पूरा हमने एक टेबल बनाया है, इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी होगा, हम सबको भेजेंगे भी कि हमारी ट्रेनिंग जो है ILO के साथ मिल के वो कहाँ कहाँ कंडक्ट की जाएगी, उसका शेड्यूल पूरा हमने बनाया हुआ है। GIC बहुत ज़्यादा काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये भी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। इनके फॉरेन एक्सपर्ट्स आके मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड हैं, इनके साथ मिलकर भी हमने एक टाइम टेबल बनाया है। WWF वाले भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। पहले ये ट्रेनिंग एक आइसोलेटेड तरीके से होती थी, अवेयरनेस सबको नहीं होती। अभी हम ये कर रहे हैं, हमने कैलेंडर बना के हम सारी एसोसिएशंस को भेजेंगे, हम तमाम चैम्बर्स को भेजेंगे ताकि सारे नॉलेज में हो कि ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो रही है। और ये कोई पेड ट्रेनिंग नहीं है, ये फ्री ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे हम जो भी आपके मेंबर्स आते हैं जो इसमें ट्रेनिंग हासिल करना चाहें उनके लिए हमको वेलकम करेंगे, हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। ये बेसिकली एक छोटा सा हमने स्ट्रक्चर बनाया कि ये बेसिकली
हम कौन लोग हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक है। और बेसिकली हम हर सेक्टर के अंदर जाके गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमी ज़्यादती है और कहाँ कहाँ हमने काम करना है। और इसके अंदर हम एसोसिएशन के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम चैम्बर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे इनपुट ले रहे हैं ताकि हम सारा को पॉलिसी मैटर्स के ऊपर हम एडवाइस कर सकें और जहाँ जहाँ कमी है उसके मुताबिक हम पूरा प्लान शो कर सकें। अभी रिसेंटली मैंने जैसा बताया कि वर्ल्ड बैंक डेलीगेशन रिसेंटली आया था जो बेसिकली NQI के ऊपर था। उस NQI के साथ अभी जो रिपोर्ट आएगी, जो वर्ल्ड बैंक का अपना जो रिपोर्ट जिसमें से पहले उनका जो फाइनल वर्ड जो थे बड़े पॉजिटिव थे, उनके मुताबिक उनका ये बेस्ट डेलीगेशन था जो कि हो गया यहाँ से, क्योंकि इस बार हमने बिल्कुल कुछ थोड़ी सारी चीज़ें खोल के सामने रखी कि ये कुछ है और उसने कहा कि ये भी जहाँ जहाँ हमें इनपुट चाहिए वो हमें देने पर राजी भी है उसके साथ। अभी जो ESG फ्रेमवर्क के ऊपर जो हमें काम करना है, ये अभी डायरेक्ट हमारे पे लागू हो रहा है। ये EU के स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन चीज़ें बेचते हैं उनके लिए ये है। इसके ऊपर बेसिकली हम ऑलरेडी काम शुरू कर दिया हुआ है। इसमें भी हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं और जब कैलेंडर आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि आपके एरिया में या आपसे करीब करीब कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हो रही है और जो इसमें शामिल होना चाहे तो इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे। अगर एक ट्रेनिंग में ना हो सके तो हमारी मल्टीपल ट्रेनिंग शेड्यूल है, उसमें हम एडजस्ट सबको करेंगे इंशाल्लाह। इसमें ESG फ्रेमवर्क की डिटेल्स हैं। बेसिकली इसमें एनवायरनमेंट है, सोशल है और गवर्नेंस है। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसके ESG के अंदर। इसमें एक एनवायरनमेंट को डील करता है, एक सोशल को डील करता है और एक गवर्नेंस को डील करता है। अब इसमें जो लार्ज स्केल वाले हैं उनके लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़्यादा मसला है जो SME है। जनरली SME इस तरह की चीज़ें देखे पीछे हो जाते हैं कि जी हमारे से क्या ताल्लुक, हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं या जो एक्सपेंसिव फॉर अस, या सोशल के लिए क्या कर सकते हैं, या हम गवर्नेंस से क्या गवर्नेंस से क्या ताल्लुक, ये हम ट्रेनिंग में बताएंगे कि इसमें किस तरीके से वो इसमें काम कर सकते हैं। ये बेसिकली मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रेमवर्क के ऊपर ये ट्रेनिंग में हम सामने जाएंगे। अभी आज की मीटिंग में तो हम सिर्फ आपको अवेयरनेस ही देने आए। जो हमारी ट्रेनिंग सेशन होगा उसके अंदर इसके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी और डिटेल ट्रेनिंग सामने की जाएगी। अब इसी तरह जो अगला स्टैंडर्ड जो बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव है जो EU का, ये भी ऑलरेडी लागू हो चुका और अभी 2 साल का पीरियड था। हम ऑलरेडी उनसे बात कर रहे हैं कि 1 साल फर्दर एक्सटेंशन जाएगी, इवन 2026 तक हमारे लिए करना शायद आसान ना। और ये वो है जो अगर हमने एक्सटेंशन ले ली उसमें भी इसी से आप लोगों की हेल्प करेगा ताकि हम इसमें आपसे बढ़ के काम करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने अपने एक्स्ट्रा कोई क्वालिटी पीरियड लेना है हम वहाँ बात करेंगे। जहाँ जहाँ हमने कोई लैक्सिटी लेनी है वहाँ भी बात करेंगे कि अगर हम पूरा ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव अगर पूरा नहीं भी कर सकते तो हमको क्या चीज़ें हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के लिए स्पेशल हम सेंक्शन ले सकते हैं। इसका मकसद क्या है ड्यू डिलिजेंस का? ये बेसिकली ट्रेसेबिलिटी है कि जो भी आप आइटम आप भी आजकल नए स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आपने कोई भी चीज़ डेवलप करनी है तो आपको पूरी ट्रेसेबिलिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कपड़ा बनाना है, मैंने कहा कि जी वो किस मिल से कपड़ा आया, उसमें कौन सा धागा इस्तेमाल किया गया, धागा जो था उसके पीछे जो कॉटन बेल्स कहाँ से आई, कॉटन बेल जहाँ से आई वो जो फील्ड में फार्मर जो था वो कहाँ पे था, जो फार्मर था उसने जो वो शामिल खाद छाद डाली वो कौन सी डाली, इस टाइप का डिटेल्स सारी चाहिए होती है इसके अंदर। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ये वेरी मच डूएबल है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई मेटालिक पार्ट्स में काम कर रहे हैं या सर्जिकल वाले पार्ट कर रहे हैं तो सर्जिकल में भी ये होगा कि अगर आपने मटेरियल लिया तो मटेरियल कहाँ से लिया, जो इंडस्ट्री थी उसने मतलब उसकी जो डिटेल्स हैं क्या वो कंप्लाइंट थी नहीं थी, उसके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या थे, उसने ग्राउंड वाटर को तो नहीं किया, एफ्लुएंट मटेरियल तो नहीं फेंका, इस टाइप की चीज़ें हैं जो सारी उनके फील्ड्स बनी हुई हैं। इसमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। हर सेक्टर के लिए इन्होंने ड्यू डिलिजेंस का पूरा एक टेबल सा बना दिया। तो इसमें ये वो चीज़ें हैं कि जो इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी ये लागू हो चुका, अभी हम हॉलिडे पीरियड में जा रहे हैं, 2026 ऑनवर्ड्स ये मैंडेटरी होता जाएगा। इस वाले केस में शायद 2027 तक में एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह ये इफेक्ट करेगी। इस बेसिकली एम्स को ऑब्जेक्टिव वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर वो सारा कुछ शामिल होगा कि इसके अंदर जो मैन पावर ने काम किया, क्या उनको फोर्स लेबर तो नहीं था वगैरह वगैरह, सारा कुछ में शामिल होगा। अब इसमें जो अफेक्ट कौन कौन लोग हो रहे हैं इसके अंदर जो सामने बड़ा टेबल जो दिखाया जा रहा है, फोकस EU पे रखा। इसमें ना सिर्फ वो कंपनी जो कि EU के अपने अंदर काम कर रही है या कि जो अपनी कंट्रीज में काम कर रही है वो अफेक्ट हो रही है, बल्कि नॉन EU कंपनीज जो कि सामान वहाँ पे भेज रही हैं या रॉ मटेरियल वहाँ पे भेज रही हैं या सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट भेज रही है, वो सारी इसके ऊपर इस लागू होती हैं। ये सारी चीज़ें उन सब पे लागू हो जाती हैं और ये सारा डिटेल मैं आपको बता ही चुका है, इसमें सारी डिटेल्स चाहिए हमें बेसिकली। इस तरह कई चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर में
कॉमन है, जिस तरह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गया, इसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। अब ये काफ़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव है, सब पे आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ पिक्चर देनी थी, बाकी ज़्यादातर ये इंटरेक्शन सेशन ही था। इस तरह ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। एम ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन क्या था, बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी हो, एनवायरमेंटल गोल्स मुख्तलिफ हैं, इसमें कार्बन एमिशन भी सारे शामिल होते हैं। तो इस टाइप के मल्टीपल डायरेक्टिव हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ जगह से हम पे डायरेक्टली या डायरेक्टली लागू हो चुकी है। और अक्सर जो कन्वेंशन हैं वो हम ऑलरेडी पाकिस्तान साइन कर चुका और हमारी इंडस्ट्री पे ऑलरेडी मैंडेटरी हो चुकी है। अब वो क्या क्या है और किस तरह हमने करना है, ये चीज़ मालूम करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसके बारे में काफ़ी अवेयर है और अपने आप को काफ़ी हद तक कंप्लाइंट किया भी हुआ है। मसला है हमारे SME के साथ कि हमारी SME इसके बारे में क्या करें, क्योंकि अक्सर लार्ज इंडस्ट्री के सप्लायर हमारे SME हैं और जब CSDD में हम जाते हैं या ड्यू डिलिजेंस में जाते हैं तो उसमें जहाँ से मटेरियल आ रहा है, जहाँ पे लेट्स से पार्ट ऑफ द मटेरियल कमिंग, वो भी उसके ऊपर लागू हो जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें इसीलिए हमारा गुजरांवाला ज़्यादातर SME है, ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री है, तो इन लोगों पे क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी तरीके से लागू होती हैं, किस चीज़ों में यहाँ पे इनको हॉलीडे मिल सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस से आप लोग काम करें, आपको पता हो कि आपका मटेरियल जो है वो एक्सपोर्टेबल है कि नहीं, क्या वो बड़े प्रोडक्ट में लग सकता है कि नहीं, और अभी अगर आपने काम नहीं किया तो क्या बड़े प्रोडक्ट में जिस वक्त जो आपसे सप्लायर चीज़ें ले रहा है कल को वो बंद तो नहीं कर देगा। तो इसकी अवेयरनेस आपको बहुत ज़रूरी है और क्या क्या स्टेप्स आपने लेने हैं ये बड़ा ज़रूरी है। इसकी ट्रेनिंग हम लोग इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल आ जाएगी। अभी हमारी वेबसाइट अपनी ही इंशाल्लाह 30 जून से पहले हमारी वेबसाइट भी आप हो जाएगी, उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल शामिल है। लेकिन आजकल कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आजकल तो AI का और ChatGPT का दौर है। एनीबॉडी सिटिंग ऑन कंप्यूटर एक क्लिक के ऊपर ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ सकती हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। लेकिन उसकी जो मतलब ये कहने की इन बिटवीन द लाइन डिटेल्स हैं, वहाँ पे हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि इसको इस पर हम क्या करें, हमारी SME क्या करें और क्या हमारी इंडस्ट्री जो है बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाएगी, अब क्या चीज़ करें कि हम इसको लेके आगे चलें। उसके लिए हम लोग बैठे हैं, आप लोग की हेल्प के लिए बैठे हैं, आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी मालूम होगी और वो चीज़ें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसके अलावा अगर आप जो फेस करते हैं हमें बताएं, जहाँ जहाँ असिस्ट कर सकते हैं हम आपको करें। ये ड्यू डिलिजेंस की डिटेल सारी मौजूद है। मेरे ख्याल से मेरे लिए इतना ही था। ये बेसिकली ये सारी मॉडल समरी आ गई कि EU की जो मुख्तलिफ DPP हो गया या CSDD हो गया, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर इसमें ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि टेक्सटाइल हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की EU के अंदर है, GSP+ स्टेटस के अंदर मल्टी बिलियन की एक्सपोर्ट मार्केट जा रही है। इसीलिए वो पिछले 2 साल से इस पर बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी लार्ज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस पर काफ़ी हद तक कंप्लाइंट हो भी चुकी। जो हमारे स्मॉल जो लूम्स वाले हैं और बाकी जो हमारी SME जो कि सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि भारत इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनको इसमें असिस्ट कर सकते हैं। ये DPP के ऊपर डिटेल्स हैं, आपको बता ही चुका कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। बेसिकली इसके अंदर भी सारी ट्रेसिबिलिटी है कि इसमें एक बार आप क्लिक करते हैं QR कोड को, ये स्कैन करते हैं, उसमें पूरी डिटेल सामने आ जाती है। और ये बेसिकली ये डिफरेंट है, बाकी जो आज के लेवल लगे होते हैं इस पर सिर्फ आपको सिर्फ इंडस्ट्री का नाम या कॉस्ट पता चलता है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट जो है इसके अंदर पूरी फील्ड्स आ जाती हैं, जिसके अंदर फुल मटेरियल ब्रेक डाउन है, इसमें तमाम चीज़ें मतलब है। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ लाइफ एंड रिपेयर ऑफ इंक्लूडेड के लिए, अगर इसकी लाइफ ख़त्म होगी तो उसका डिस्पोजल क्या होगा, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है, क्या इसको आप डंप में डाल सकते हैं, क्या ये केमिकल के लिए डेंजरस तो नहीं है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। हमने टेक्सटाइल का तो जिक्र कर दिया। अब ये बेसिकली हमारे करंट चैलेंजेस हैं। हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है क्योंकि हमने काफ़ी तक स्टैग्नेंट जा रहे हैं और इस एक्सपोर्ट को इस एनवायरनमेंट में बढ़ाना है कि जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ किस्म के कंप्लाइंसेस भी आ रहे हैं। और ना सिर्फ हमारी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना है, बल्कि हमारे जो सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उनको भी बढ़ाना है, हमारे अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आना है। और हमने अपने जो डेवलपर्स हैं हमारे इंडस्ट्री को बताना है, अगर EU नहीं तो यूरोपियन नहीं तो अमेरिकन साइड पे या फार ईस्ट साइड पे या अफ्रीकन साइड पे कहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स जा सकते हैं इन चीज़ों के साथ। ये बेसिकली एक हमारा ये भी है। आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर दिस। थैंक यू। शुक्रिया नाज़री साहब। सबक तो थोड़ा लंबा था, चलो याद हो ही जाएगा। जी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो फारूक साहब, फैसल साहब या दीगर लोग। बहुत सारे सवाल कुछ
سوال میں پہلے کر چکا ہوں ڈاکٹر صاحب سے اور کچھ مزید سوال ہے پریزنٹیشن. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں ذکر کیا ہر جگہ پہ ای یو کا. Is this compliance is purely EU specific? آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں زیادہ ذکر EU کا کیا, کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت جو کمپلائنسز آ رہی ہیں جو کہ ہمیں ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہیں وہ EU ہے. اور EU اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہمارا جو ٹیکسٹائل ہے میجر, ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ EU کی طرف کر رہے ہیں, اس پہ ملٹی پلیئر کا ہمارا افیکٹ ہو سکتا ہے. اور یہ والی اگر نہیں دی گی تو ہمارا بالکل فل اسٹاپ ہو جائے گا. اس وجہ سے ادر وائز تو ہمارا مینڈیٹ میں سارے شامل ہے, پارس بھی ہے, امریکہ بھی ہے, افریقن کنٹری بھی ہے. Before going into this presentation, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے پاس do we have any data available for our exports to the EU? What we especially while sitting in GCCI. جی بالکل ہے, ہم نے اس کو پچھلے 2 سے 4 مہینے میں ہم نے ہر سیکٹر میں ہر ریجن کی جو ہماری ایکسپورٹس ہے اس کا پورا بریک ڈاؤن لیا ہے, اور اس کے مطابق ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے مطابق ہم نے RA ہائر کیے ہیں, تھیمیٹک ایکسپرٹ ہائر کیے ہیں تاکہ وہ گیپ انالیسس کر سکیں. ہم نے بڑا کمپریہنسو ڈاٹا سیکٹورل وائز اور ایریا وائز ہمارے پاس موجود ہے, جو کہ ہم نے یہ بیورو اسٹیٹسٹکس سے لیا, جو ہم نے اس سے لیا, منسٹری آف کامرس سے لیا, ان سب سے ڈاٹا ہم نے لے کے رکھا ہے. I would like بھائی ایکچولی EU یہ شاید اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپلائنسز اور کوالٹی ایشورنس میں دنیا میں EU ہی اس وقت لیڈ کر رہا ہے. ایون نارتھ امریکہ فالو کرتا ہے ان کو. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ دے آپٹ دا پالیسیز جو EU اپناتا ہے اور بناتا ہے, تو دے آر 1 اسٹیپ بیہائنڈ, اور دے آر انفیکٹ فیو اسٹیپس بیہائنڈ EU. تو وہ آپٹ کرتے ہیں یورپین پالیسیز. تو بیسیکلی یورپ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس وقت یورپ زیادہ اگریسو ہے. اور پاکستان کو ایک تو یہ بات ہے کہ یورپ لیڈ کرتا ہے, جیسے آپ جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس میں امریکن ایجنسی کوئی نہیں ہے. SGS از یورپین, سوئٹزرلینڈ کی ہے, بیورو ویریٹاس از فرینچ, یورپین ہے. تو دیز آر دا 2 مین ایجنسیز جو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایشین ایجنسیز اب آ گئی ہیں جو چائنیز بیسڈ اور ہانگ کانگ بیسڈ ہیں. There is no American agency even. They are because EU اس وقت EU America though is the biggest market, but they are not the trend setter as far as the quality standards, sustainability اور اب یہ traceability کا آ گیا ہے. تو sustainability اور دنیا کی فکر جو ہے نا وہ یورپ کو ہے. امریکہ کو دنیا کی sustainability کی فکر نہیں ہے اور traceability کی فکر نہیں ہے اس وقت. انوائرمنٹ کی وہ یورپ کو فکر ہے بیسیکلی, اس لیے وہ کر رہے ہیں. پاکستان کو اس کا امپیکٹ 2 فولڈز کیوں آتا ہے. ایک تو ہماری میجر ایکسپورٹس EU کو ہے. اگر EU جب ہم کو دھمکی لگاتا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ ہم GSP پلس کینسل کر دیتے ہیں, تو یہاں پہ میجر پالیسی شفٹ آ جاتا ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا پالیسی, ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سالوں کے اندر بہت اگریسو پالیسیز تھیں. EU کا سمپل ایک امبیسڈر ٹی وی پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم EU اسٹیٹس آپ کا یہ GSP کا ریووک کر دیں گے. تو صبح اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی نو کہ ہماری اکنامک بیک بون جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے EU کے اوپر. دوسرا تو دا ایزی ایکسیس ٹو دا نیئرسٹ ویسٹرن مارکیٹ از EU. آج بھی 2 طرح کی مارکیٹ ہے, ایک تو ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے, ایک جو نیو مارکیٹ ہم ٹیپ کر سکتے ہیں, نئی پروڈکٹس ہم بیچ سکتے ہیں. ہم امریکہ جا کے شاید نہیں بیچ سکتے, برازیل ارجنٹینا جا کے نہ بیچ سکیں. تو EU ہماری نیئرسٹ مارکیٹ ہے جس کو ہم ٹیپ کر سکیں گے. تو فیوچر مارکیٹ بھی ہماری EU ہے, آج کی مارکیٹ بھی EU ہے اور آنے والی بھی مارکیٹ وہی ہے. تو اس لیے اگر ہم EU کر دیں گے تو پوری دنیا کو ہم کر دیں گے. میں تھوڑا سا مزید آگے دیتا ہوں. اب جیسے انہوں نے ذکر کیا نا کہ EU اس وقت لیڈ کر رہا ہے کمپلائنسز کے اندر. اگر آپ نے یہ کمپلائی کر دیا تو پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹری ہیں یہ بہت لیس فالو کرتی ہیں, یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں EU اسٹینڈرڈس, جس میں آپ کا یہ کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا ڈیولپ کنٹریز.
फार ईस्ट वाले में। जो दूसरी है, इस तरह ये साउथ अमेरिकन मार्केट हो गई या आपकी जो अफ्रीकन मार्केट हो गई, वो भी तक इतनी कंप्लाइंट पीछे नहीं जाती। इससे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि हम अपनी इंडस्ट्री को ये गाइडेंस दे सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे नहीं भी आते तो आपके पास कौन सी मार्केट है जहाँ पे आप कर सकते हैं। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है, लेकिन हम लोग बैठे हुए एक्सपोर्टर्स की सपोर्ट के लिए, हम वो भी करेंगे। एक्सपोर्टर्स ट्रेनिंग का एक पूरा कोर्स रन किया जाता है, जो बड़ा रेगुलर ट्रेनिंग की जाती है DDAC की तरफ से, हम उसका भी पार्ट बनते हैं। उसका ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि अगर आपने कंप्लाइंट ये है यहाँ पे भेजना तो ये मैंडेटरी, यहाँ पे तो सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रेन की जाती हैं कि आप कौन सी मार्केट कहाँ कर सकते हैं। अब इसमें इंडियन बहुत आगे इंडिया के मुख्तलिफ मिशन हैं जो कि इस चीज़ पे काम करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के साथ सपोर्ट में। आप उस तरह का मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई को बिटवीन बने। हमारे फॉरेन मिशन को देखिए, सारे फॉरेन मिशन में जो ट्रेड वाले बंदे हमारे बैठे होते हैं ये कॉमर्स की तरफ से जाते हैं, तो वो भी बेसिकली NCC वहाँ भी नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएगा। फिलहाल तो हम इमीडिएट के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पे भी आएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे जानना है, मैं 2 क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। बेसिकली आपकी जो इस सेगमेंट है ना, हम अंडरस्टैंड कर गए हैं, आपका रोल अंडरस्टैंड कर गए हैं, आपकी मिनिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर गए हैं, आपके डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड कर गए हैं। नाउ हाउ वी हैव टू नाउ गेट रनिंग ऑन द रेल्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो आपने बताई है कि आपने असेसमेंट्स करनी है और सारा कुछ आपने कंप्लाइंट फैक्ट्रीज करनी है। सो फ्रॉम वेयर वी आर टुडे टू फैक्ट्रीज गेटिंग कंप्लाइंट, जो दरमियान का रास्ता है वो तय कैसे हमने करना है। आपके पास इस वक्त 2 तरह के टास्क हैं ना, एक तो आपने एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स को सस्टेन कराना है, वो बचाना है, दूसरा आपने न्यू प्रोडक्ट्स के लिए डोर ओपन करवाने हैं। ठीक है, जो मैं पहले दूसरी बात को करूँगा कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जैसे हमारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, कुछ भी हैं, वो तो पहले ही आज की जो EU की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे EC मार्क है, या वो ही नहीं अचीव कर पा रहे। तो जब 2026 में सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी में अब जाएंगे, तो सस्टेनेबिलिटी में आप पानी बाहर नहीं निकाल सकते फैक्ट्री के अंदर से जो कि हैजरडस मटेरियल्स का हो, उसके लिए आपको ETP प्लांट लगाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे काम है जो कि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर मुमकिन ही नहीं है। कैसे आप उसको लेके चलना चाहेंगे? एक तो नई प्रोडक्ट्स को कैसे लेके आएंगे, दूसरा जो इस वक्त तो जान के लाले पड़े हुए हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स हैं वही 2026-27 में डी रेल ना हो जाए, खत्म हो जाए, हम सिर्फ अपना उगाएं, अपना खाएं और रह जाएं, ये चक्कर ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स हैं उसको कैसे बचाना है। अगर हम वही बचा लेना तो मैं समझता हूँ उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियों की सबसे पहले असेसमेंट करनी पड़ेगी, वो मॉडल फैक्ट्रियाँ बनानी पड़ेंगी, फिर उन मॉडल फैक्ट्रीज को देख के लोग उनको रेप्लिकेट करें दूसरी फैक्ट्रीज। उसके लिए आपको फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी मुख्तलिफ रीजन में। मैं देख रहा था प्रिग्मा, PHR में, एटमा मुख्तलिफ लोगों के साथ ऑन बोर्ड है, गुजरात अहमद भी आपके साथ ऑन बोर्ड होता है। तो आप फैक्ट्री सिलेक्ट करें, उनको मॉडल फैक्ट्री बनाएं, उनके साथ काम करें, मिलके अपनी आपकी टीम डिप्लॉय करें, तो कि ये अपने फैक्ट्री जो है सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी के लिए कंप्लाइंट करा ली है, तो फिर वो ओपन हो फैक्ट्री बाकी फैक्ट्रीज के लिए। मैं इसमें थोड़ी सी 2-4 चीज़ें कहूँगा। इसमें कुछ चीज़ें कॉमन सेंस है, कुछ चीज़ें ज़रा सख्त है। मैं सख्त बात में पहले आता हूँ। जो इशू है, हमारी कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं इवन इस रीजन में भी हैं जो कि कंप्लाइंट है ना। टेक्सटाइल तो खैर कंप्लाइंट सब जानते हैं कि टनल है, आर्टिसान वाले हैं, इंटरग्रुप है, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे हैं, इवन क्रिस्टल ग्रुप की जो बाहुमान वाला, दे आर कंप्लाइंट। अब उसमें भी जो स्मॉल सेक्टर्स के हैं उनको इश्यूज़ हैं। मसले जो हमें पढ़ रहे हैं कि हाउ टू ओपन दैम अप और वो चीज़ हम रेप्लिकेट कैसे करें। मैं उसमें एक और सेक्टर की तरफ आता हूँ जो कि टेक्सटाइल छोड़ के, टेक्सटाइल के ऊपर तो बहुत काम हो भी रहा है, सब जानते हैं। मैं इस पर आता हूँ जो आपका लेदर के ऊपर है। अब लेदर में टैनरीज का इशू है, वहाँ पे जो उसमें ट्रीटमेंट का तमाम और वाटर का काफ़ी सीरियस इशू। पिछले कुछ 4 से 5 साल के दौरान WWF के साथ मिलकर एक पूरा ट्रेनिंग साइकिल चली और इस वक्त एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको मेरे ख्याल से भी 4था साल चल रहा है, जिसमें 5 फोकस इंडस्ट्री लेदर की पकड़ी गई, उनको फुली कंप्लाइंट किया गया और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 30 जून मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाएगा और उसी पूरी रिपोर्ट हम उनसे ले रहे हैं कि वो हम ताकि उसको रिप्लिकेट करें। लेकिन जो हमें मसले पड़ रहे हैं कि हम जिसको एक बार कंप्लाइंट कर देते हैं वो आमतौर पर उसको कहते हैं कि हमारा बिजनेस और हमारा बिजनेस सीक्रेट करके उसको रेप्लिकेट करने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस करते हैं।
ये बाकी लोग सारे बैठे हैं, कल को आप लोग भी इसमें ट्रेन होंगे। हम किसी का बिजनेस ख़राब नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जिसका जो चल रहा है उसको हम चलने देंगे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके बाकी को गाइड करना ताकि सब लोग आगे चलें। दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ी है, अगर बाकी इंडस्ट्री की अगर एक्सपोर्ट के काबिल हो जाए तो आपकी इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे हैं टेक्सटाइल में कुछ हद तक, लेकिन मेनली लेदर के अंदर, बाकी अंदर आपको सुन के हैरानगी होगी, जापान ने फंडिंग दी है पिछले 4 से 5 साल में कुछ 4-5 इंडस्ट्री को कंप्लाइंट करने के लिए। ये अभी WFF ने जिक्र किया, इन्होंने भी 5 इंडस्ट्री को कंप्लाइंट लेदर के लिए करने किया, LWG के साथ बैठा हुआ है लेदर वर्किंग ग्रुप, उनके सरपरस्ती में सारा काम चल रहा है। तो हम उन सबको NCC का ये काम हमने ये किया, उन सबको हमने आइडेंटिफाई किया और उन सब से डाटा लेके हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपको काट रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ कि आप हमसे मांगे 10 इंडस्ट्रीज, हमारे तो 34 के 37 सेगमेंट्स हैं, आप हमें कहें कि यार आप हमें 5-10 इंडस्ट्रीज दें शॉर्टलिस्ट करके, हम उनको अडॉप्ट करते हैं, हम उनको कंप्लाइंट करवा के देंगे, आप हमारे साथ ऑन बोर्ड होगा, हम कुछ करने की तरफ आए ना, इस तरह हम लोग तकरीर लंबी हो जाएगी, उसमें हम निकालेंगे कुछ नहीं। इसका मकसद आप बैठे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी पुरानी है, बिल्कुल ये क्या नाम है, ये अफाक अयूब साहब है, ये 1880 से ये एक इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री पुरानी है, वी नीड टू पिक इंडस्ट्रीज। बिल्कुल आप चैम्बर में आइडेंटिफाई करें, हम 5, 7, 8, 10 वॉलंटियर्स लेते हैं, आप उन वॉलंटियर्स के साथ काम करें, अगर आपको उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी करानी पड़ती है तो यूज द कम अप विद अ प्लान, हम एक अगली फॉलोअप मीटिंग रखते हैं, उसमें हम वो वॉलंटियर्स भी बुला लेते हैं। आप हमें ऑफिशियली एक लेटर लिखें कि आप हमें 8-10 वॉलंटियर्स दें जिनको हम कंप्लाइंट करेंगे, वी बेस्ड ऑन दैट लेटर हम वो वॉलंटियर शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो देन वी सिट टुगेदर और हम करके दिखाते हैं, लेट्स मेक इट हैपन सर। ठीक, मैं इसी में थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अभी हमने एक और जो काम किया, मैं तेज़ी में आप सारा कुछ कवर नहीं किया, टाइम टू रश थ्रू इट। हमने मेजर ब्रांड्स के साथ हमने इंटरेक्शन शुरू की है, जिसमें अंदर H&M वाले शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे जो मतलब इंटरनेशनल ब्रांड जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं कि उनके सप्लायर्स जो है वो किस तरह कंप्लाइंट होंगे, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि हमने हर चैम्बर में जाके यही काम किया कि हमने यहाँ पे कोई रेस्ट दें, फोकल पर्सन दें या कोई फोकल इंडस्ट्रीज दें कि जहाँ पे करें। EDF आप लोगों का इदारा है, आप लोगों के पैसे से बना है। EDF ने ऑलरेडी हमें कहा कि जी आप प्रोजेक्ट लेके आएँ और आप उसको स्क्रूटनाइज करके करें ताकि हम इंडस्ट्री में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट हो। आप जो हमें बताएंगे हम डायरेक्ट उसको इंशाल्लाह EDF फंडिंग देंगे, करके देंगे। और उसके अलावा अगर कोई दरमियान में कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है, मैंने ऑलरेडी शायद शुरू में टॉक हो रही थी, हमने इन लोगों से बात की कि कहीं पे कोई टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, कोई सेटअप चाहिए तो वो भी यहाँ पे लग सकता है। एक स्टेप और आगे गए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में शायद आप बहुत कम लोग जानते हैं, कॉम्स्टेक नामी एक इदारा है जो कि OIC का है, इस्लामिक कंट्रीज़ की कमेटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी सीट पाकिस्तान के पास है। हम उसके गवर्नर जनरल से भी जाके मिले जिनके पास OIC की सारी फंडिंग मौजूद है, उन्होंने हमें ऑफर किया कि हम आपको 1 साल में 1000 तक एक्सपर्ट्स दुनिया में कहीं से भी लेके आएँ, आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी हेल्प के लिए या इंडस्ट्री के लिए हम प्रोवाइड करने में राजी हैं। तो हमारे पास इस तरह का बैकअप सपोर्ट मौजूद है, फंडिंग के लिए फिर से हमारे पास है, प्रोवाइडेड कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इनफ इम्पैक्टफुल चीज़ अगर आती है तो वो फंडिंग देने में राजी है। OIC वाले जो हैं वो आपको ट्रेनर देने पर भी राजी हैं, हम लोग आपके सपोर्ट पर राजी हैं। हमने हर जगह जाके हर चैम्बर में ही बात की और हर चैम्बर में इनिशियल टॉक से पहले तो एप्रीहेंशन थी, लेकिन टॉक के बाद अब वो जिन जिन जगह पे होके आ चुके उस सब जगह से हमें प्रपोजलें भी आ रही हैं, उस सब जगह से हमारी इंटरेक्शन भी हो रही है। हर जगह पे ओपनिंग ऐसी हुई हमारी कि या तो बंदे आए नहीं या क्या चालू की फाइल ये कोई और कोई थानेदार आ गए। हम थानेदार नहीं हैं, हम कोई इंडस्ट्री बंद करने नहीं आए, हम किसी की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। किसी को कोई इश्यूज हैं, हम वी आर नॉट गोइंग टू शेयर डाटा विद एनी एनवायरमेंटल एजेंसी और एनी टैक्स एजेंसी और FBR, ये हम आपको गारंटी करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दायरा बेसिकली बना है इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए। आपको जो मुश्किलात हैं आप थ्रू चैम्बर थ्रू एसोसिएशन से बात करें, क्योंकि हर इंडस्ट्री इंडिविजुअल करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमने एसोसिएशन और चैम्बर को ही फोकस बनाया और इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों की वजह से दायरा चल रहा है, हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसके अंदर चैम्बर्स वाले शामिल हैं, जिसके अंदर आपके ट्रेड वाले शामिल हैं, ये हमें डायरेक्शन भी दे सकते हैं और हमारे इदारे को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये FPCCI के चेयरमैन के पार्ट हैं, उनके थ्रू बेसिकली चैम्बर का एसोसिएशन होता है बेसिकली। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन जो हमारी है फोकल मेरे पास है 5 के 6
मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने शेयर कर दूंगा बताइएगा जरा। जी। मैं आपके साथ शेयर वो भी कर देता हूँ कि अगर एडवाइजरी कमेटी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, अगर वो चैम्बर के मध्य होना चाहते हैं, वो भी आप सजेस्ट करें, क्योंकि हमने मेजर एसोसिएशन में टेक्सटाइल है, लेदर है, जो हमारे मेजर 7 एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी एसोसिएशन के हेड्स में शामिल हैं। बेसिकली हमारी टेक्सटाइल है, लेदर है, इसके अलावा हमारे में से राइस है, और 7 सेक्टर्स हैं टोटल। बेटा 7 सेक्टर्स हमारा बताएं क्या क्या है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं, इसके अलावा बेसिकली 7 सेक्टर्स हैं। मैं आपको पूरी शेयर कर देता हूँ। और इसकी एडवाइजरी काउंसिल की इसकी पहली मीटिंग मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा। अब इसमें ज़रा और जोर देने के लिए इस एडवाइजरी काउंसिल को हेड करते हैं मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इस वक्त जहाँ कमाल साहब हैं। इससे पहले नवीद कंवर साहब थे। नवीद कंवर साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कराई थी, जहाँ पे कमाल साहब के दौर में ये हो रही है। जो भी मिनिस्टर हो, प्रेजेंट मिनिस्टर ने इसको अपनी लेगेसी के तौर पे लीडरशिप ली है। वो कहते हैं जी हर जगह पर उन्होंने अपनी टॉक पे, अगर आप खबरों में देखें, उन्होंने इसकी बात भी करना शुरू कर दी। तो अभी उन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए हमें बताएं, हम आपको इम्प्लीमेंट करके देंगे। तो इस वक्त हमारे हाथ में काफ़ी उन्होंने पावर थी। इस वजह से हम तमाम चैम्बर्स को कह रहे हैं कि जी आप आगे बढ़ें, आप बताएं आपको क्या चाहिए। कुछ हमने सोचा हुआ है, कुछ बाकी लोगों से इंटरेक्शन करके कुछ स्टेप्स हम ले रहे हैं, और उसके ऊपर हमने कॉम्प्रिहेंसिव इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि हम सारे चैम्बर्स का शेयर भी करेंगे। जो हमारा वर्क प्लान है पूरा, कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, अब वो भी आपसे शेयर करते हैं। अगर उसमें कोई आप चेंज देना चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं। I think your working plan will dependent upon the vary करे, because you all have different sectors. आपने सारे sectors बताए, ये sectors, I would like your data share to answer, जो आप कर सकते हैं। हम बिल्कुल ओपन है, हर चीज़ डाटा, कोई सीक्रेट डाटा नहीं है। आप मांगे हम आपको देंगे। सियालकोट सेंटर फैसलाबाद भी है, कराची की है। वो है ना जी, टेक्सटाइल फैसलाबाद कराची, पार्टली सियालकोट टेक्सटाइल, लेदर इज सियालकोट एंड कराची, सर्जिकल इज ऑल सियालकोट। अगर आप स्पोर्ट्स डेफिनेटली आपके पास होगा, स्पोर्ट्स ऑल सियालकोट। तो आई वांट कि हमारे सेक्टर राइस है ना, सर राइस है तो बात समझिएगा, इसको टेक्निकल और कंप्लायंस मतलब ऐसा नहीं, ऐसा राइस ग्रो करके हम राइस बनाते नहीं हैं। आप समझिएगा कि राइस ग्रो होता है, हम बनाते नहीं है स्क्रैच से, वो फर्क है उसके अंदर। आप उसकी और किसी भी बिल्कुल है कि राइस एक्सपोर्ट एक प्रोडक्ट हम खुद बना रहे हैं स्क्रैच के ऊपर, एक प्रोडक्ट लेके उसको ढाल के, दैट इज अ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग राइस, ग्रोइंग राइस इज डिफरेंट। मैं थोड़ा सा पूछता हूँ सर, एक चीज़ सिर्फ एक बात करूँ, उस बात आप हमेशा करें। डाटा भी चाहिए कि हमारे पास से एक्सपोर्ट की हर जगह से डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा डिफरेंट आता है। कोई कहता है कि हमारे इतने मिलियन की एक्सपोर्ट है, आप कहते हैं कि आप इतने, सो इन सेक्टर्स में आपके डाटा के मुताबिक कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको पहले फोकस करेंगे कि ताकि उसको एक्सपोर्ट कंटिन्यू। मैं आपको इम्पोर्टेंस आपकी बता दूँ क्या इम्पोर्टेंस आपकी है। हमने सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, देन आपका 5वां नंबर लेके आए। आप टॉप 5 में शामिल हैं, आप हमारे बिल्कुल फोकस में हैं, इसलिए आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएमई के अंदर यू आर द लीडर्स। फैसला जो है गुजरांवाला हमारी एसएमई की लिस्ट में लीडर है। समेडा का पूरा ट्रेनिंग साइकिल हमने टेक ओवर कर लिया, और वो समेडा फोकस ही एसएमई के ऊपर है। एसएमई में जो पहला नाम आ रहा है वो गुजरांवाला का है। आपकी इंपॉर्टेंस ये है, आपको वो आप हमें बताएंगे कि आपको कहाँ का चाहिए, हमें बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे उसको। उनकी जो एग्जिस्टिंग आपके पास डाटा या जो आपको वर्किंग प्लान कि आपको 7 सेक्टर्स बताए तो उसमें मैंने 6 आपको दिखा दिए होगा। 18 7 फोकस हैं और 11 डेवलपमेंटल हैं, 18 सेक्टर हैं। आप ऐड करें, दिस इज नॉट राइटिंग ऑन द वॉल, आप ऐड करें। खड़े हैं, मैं उसके मुताबिक ऐड इन्फॉर्मेशन कर रहा हूं कि वी बी ऐडिंग मोर सेक्टर्स इनटू इट, ताकि क्योंकि साल दूसरा बड़ा सेंटर हो, वो एनालिसिस कर देंगे। फैन इज देयर, यू आर एक्सपोर्टिंग फैन, एक हम उसको एक्सपोर्ट को मेंटेन करेंगे एंड देन विल बी इनहांसिंग। ये स्मॉल मशीनरी के अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा नाम है, मतलब ये एसएमई के अंदर और इसमें स्मॉल मशीनरी और ये अप्लायंसेस, स्मॉल अप्लायंसेस के अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा नाम। आप सजेस्ट करें, आप बताएं हमें, और उसके लिए एक्सपोर्ट मार्केट हम आपको न सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे बल्कि हेल्प करेंगे ताकि एक्सपोर्ट में जाए। आपकी वॉशिंग मशीन जानी चाहिए बाहर, आपकी जो ये पंप्स वगैरह बाहर जाने चाहिए। अफ्रीकन मार्केट पूरी खुली, इस वक्त सारी इंडियंस जा रहे हैं वहाँ। आप अमेज होंगे कि साउथ अफ्रीका में उसमें सारा काम इंडियन जा रहा है। आपके पास डाटा जो एक्सपोर्ट का मौजूद है एंड these guys are having to देखते रहा मैं वांट कि वो दोनों मैच हों। अगर नहीं है तो हमारे लिए दे दो बजट, ठीक है ना? बिल्कुल हम शेयर करते हैं, हमारे पास है, हमारी वेबसाइट पर सारा कुछ मौजूद होगा, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं, उसको अपडेट भी करेंगे।
جی کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. یہ ہمارا گجرانوالہ جو ہے جیسے ہم نے بات بھی کی کہ ہم بڑا اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے جو بھی اسٹینڈرڈ کی آپ نے جیسے بات کی اس میں ٹیسٹنگ جو ہے بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب آج آگے ہمارا جو PCS ہے آ رہا ہے وہ لاہور میں ہی ہے. اس اتنے بڑے ریجن میں ہماری کوئی ایسی لیبارٹری نہیں جہاں پہ جو ہے ہم ٹیسٹ وغیرہ کروا سکیں. وہ کسی بھی چیز کے لیے لاہور جانا اس کے ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہے اور پھر اتنا رش وہاں پہ ہے کہ وہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. یہ چیزیں بھی ہیں. میرے خیال میں شاید آ جائے کلیکشن پوائنٹ تو شاید یہاں پہ سینٹر بنایا ہے PCS کا, لیکن لیبارٹری نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے اس SME سیکٹر کے لیے. یہ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے ریزلٹس اس کی جو سرٹیفکیشن اگر ہوتی ہے کروا بھی لے ہم تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا. ہماری شپمنٹ اگر چلی جاتی ہیں وہ پھر بھی ان کو وہاں پہ پورٹ پہ روکتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ہے میٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں. اس میں اگین ٹائم بھی لگتا ہے. جو ہماری کاسٹ لگ گئی ہے اگر اس میں سارا ٹائم لگا ہے یا سرٹیفکیشن ہے اس کی کوئی لیول ہی نہیں اس کا. اس چیز پہ آپ نے جو بات کی کہ اس لیبارٹری کی تو اس کی کیا کام کی کر رہے ہیں؟ میں اسی پہ بات کرتا ہوں. جو آپ سے بات کی بالکل اس کے اوپر ہم نے پہلا کام یہ کیا تھا. جب NCC بنا ہمارا پہلا کام یہ تھا, ہم نے ورلڈ بینک کا NQI کا جو مشن تھا اس کو کنڈکٹ کیا اور NQI کا پورا رول اپنے اوپر ٹیک اوور کر دیا. ہم نے اس میں آپ کو بتایا کہ ہم نے کی ہے جو آپ کی PCSIR کے تمام رپورٹنگ وزٹ کی, ان کو سارا ڈاکومنٹ کیا, SGS کی فیسلٹی دیکھی, بیورو ویریٹاس کو دیکھا اور باقی ہم نے دیکھا کہ کیا کیا کمی ہے. ہم نے باقی سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا دس از ایگزیکٹلی وائی وی آر ہیئر, کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا ٹیسٹنگ فیسلٹی چاہیے اور آپ کو کیا لمیٹیشن ہے, یا یہاں کی لیب پر کوئی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے یا نہیں مانا جاتا, ہمیں بتائیں. آپ کو پتا ہوگا یہ PSQCA ہے ہمارا ایک ادارہ, یہ ابھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. یہ ایکریڈیٹ کر سکتا ہے کسی بھی لیب کو اور اس کی سرٹیفکیشن کو انٹرنیشنلی پوری دنیا مانتی ہے. یہ شاید کم لوگ جانتے ہوں گے. جو ہماری بیسیکلی PSQCA بیسیکلی بنا ہی اس لیے تھا, اس پہلے اس کو ہم نے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ الائن کرایا, منوایا تاکہ اس کی اسٹیمپ مانی جائے. اب اس کے بعد پھر وہ ان کا کام ہے کہ یہ اب یہ پوری دنیا میں جو ریگولیشن کی اس طرح جاتی ہے کہ پہلے کنٹری کا اپنا ایک میٹرولوجی کا سینٹر ہوگا اور ایک سرٹیفائڈ ایجنسی بنے گی ہر کنٹری میں, اور اس کو ایک سیکرٹری ہونا چاہیے. ہم سیکرٹری بن گئے, ہم نے PSQCA بنا لیا. میٹرولوجی کا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہماری جو لیب ہے اس کو اوتھینٹیکیٹ ویریفائی کرے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے PSQCA اس کو اسٹیمپ کرے گا. اگر وہ لیب اسٹیمپ PSQCA کی ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں مانی جائے گی. اگر نہیں مانی جاتی ہم بیٹھے ہیں منسٹر آف کامرس میں, ہم منوائیں گے اور ان کو ماننا ہوگا کیونکہ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز کر سکے گا. اگر کوئی ایسا ہے آپ کا انٹرنیشنل برانڈ سے بھی کانٹیکٹ ہے, انٹرنیشنل ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ سے بھی کانٹیکٹ ہے, اگر کوئی وہاں پہ ریسٹرکشن کوئی فیل ہوتی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں. اگر ہم نے یہاں پہ کوئی فیسلٹی, اگر ہمیں SGS والوں کو کہنا ہے, لیکن SGS والے وہ کمرشل لوگ ہیں, بیسیکلی وہ دیکھیں گے کہ ہماری تھرو پٹ کتنی ہے. اگر تھرو پٹ اتنی ہے یا بزنس اتنا ہے, ایز پر لا ہم نے فورس کر سکتے ہیں کہ یہاں سیٹ اپ بناؤ, وہ بنائیں گے. تو یا آپ ہمیں بتائیں وہ کیا سیٹ اپ چاہیے, کہاں سرٹیفکیشن چاہیے, وہ ہم کروا کے دیں گے آپ کو. وہ اسی لیے ہمیں چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فوکل پرسن ہو, کوئی فوکل ڈیسک ہو, جہاں سے ہم لگاتار انٹریکشن میں ہوں, تاکہ ہمیں گجرانوالہ سیکٹر سے ہمیں یہ انپٹ آ رہی ہے, یہ فیڈ بیک آ رہی ہے, وہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. وہ ہماری ٹو ڈو لسٹ الگ بن گئی ہے, جو کوئی ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, وہ وہاں پہ رہے گا, اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں, ہمیں پوائنٹس دیں. اسی آنے کا مقصد یہی تھا. جو میں نے شروع میں کہا, ہم جس بھی ایسوسیشن میں گئے پہلے یہ میں نے بتایا میں فیڈ بیک ایسے ملتی, لیکن جب بھی ہم وہاں سے نکل گئے ہیں جس جگہ پہ ہو کر گئے 4 ایسوسیشن چیمبرس میں, چاروں جگہ سے اس وقت ماشاء اللہ میں ٹھیک ٹھاک قسم کی فیڈ بیک اور انٹریکشن شروع ہو چکی ہے. اس لیے باری باری سب جگہ جا رہے ہیں. ابھی نیکسٹ ہم نے پشاور جانا ہے, اس کے بعد پھر ہم نے اس میں جانا ہے, راولپنڈی میں جانا ہے, سارے چیمبر میں باری باری ہم جا رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا. یہی چیز ہم سننا چاہتے ہیں جو آپ نے بتایا. آپ ہمیں ڈاکومنٹ کر کے دیں. انڈیویجول مینوفیکچر یعنی انڈیویجول جو ممبر کے ساتھ ہمیں مسئلہ ہے, آپ تھرو اس میں آئیں, چیمبر کے تھرو آئیں, تاکہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چلے. کیونکہ یہاں پہ تھاؤزنڈ آف ممبرس ہوں اور ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہوگی. لیکن چیمبر کے تھرو آیا تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں چیمبر پریزیڈنٹ صاحب وہ اس کو بیٹھ کر کے بھیجیں گے کہ جو چیز آ رہی ہے وہ واقعی ویسی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, لیکن ہر بندہ اپنے بزنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے. لیکن ایک چیمبر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اوور پکچر لے کے گجرانوالہ کے لیے بات کریں. جب میں ایک اور بات کروں گا جو کہ مجھے سے آپ کو بھی پسند آئی, چیمبر پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, میں اس کال کو یوز کرنا پسند کروں گا. اب یہاں پہ ایک ہے CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی جاتی ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ نے کیا کام کیا, یا سوشل کیا کیا, یا گورننس کے لیے کیا کام کیا. ایک چھوٹے SME کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا, ہم نے گراؤنڈ واٹر کے لیے کیا کیا, ہم نے مطلب مین پاور لوگوں کے لیے صحت کے لیے کیا کیا.
इसका जो एग्जाम्पल है ये बड़ी सी एग्जाम्पल है, और मैंने सैलफोर्ड वालों से ये बात की, अगर चैम्बर लेवल पे आप एक छोटा सा फिल्ट्रेशन पानी का फिल्टर प्लांट भी लगाते हैं चैम्बर, उसमें आप सब लोग अगर 10 रुपये भी देते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं कि वी एज अ बिजनेस कम्युनिटी हमने वाटर क्लीन वाटर प्रोवाइड किया होगा, वो आप सबके जिम्मे में चला जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई और निज़ाम लगा दिया, एनवायरनमेंट के लिए कुछ तरह का सिस्टम लगा दिया, वो आपके कोई अस्पताल बना दिया, कोई क्लिनिक बना दिया, एक चैम्बर लेवल उसको तशहीर करें, चैम्बर लेवल तशहीर करें, सब लोग कंट्रीब्यूट करें, उसको लिस्ट में आना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे जाना चाहिए। वो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी बिजनेस जो है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, चाहे आप लोग 10-10 रुपये देकर चुना करें। अगर लेट से 1 करोड़ की चीज़ थी, आप 10 रुपये देके अपना पार्ट करके उस पर आप लगाएं। ये वो तरीका है जो कि इंडियंस कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश वाले कर रहे हैं, हमारे लोग ये नहीं कर रहे। अब ये वो चीज़ें जो आपके आके कोई गोरा के आपसे पूछेगा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द एनवायरनमेंट, एक सेंस से भी बेचारा खामोश हो जाएगा, पता नहीं व्हाट आर यू डूइंग फॉर ग्राउंड वाटर क्लीन वाटर, आप कहेंगे पता नहीं है, तो छोटी इंडस्ट्री है। नो, आप अपने चैम्बर लेवल पे एक कंट्रीब्यूट करके मैं कि वी एज अ बिजनेस कम्युनिटी आर पार्ट ऑफ दिस, वी हैव डन दिस, हर बंदा वो 10-15 पॉइंट हर बंदा बोले। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमने बेसिकली ट्रेनिंग का पार्ट बनानी है, गाइडेंस करनी है, और इसीलिए हम सबसे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं और इसे सबसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए हमारा फोकल पॉइंट चैम्बर है कि इनके थ्रू हम आएंगे और इनके साथ हम बात करेंगे ताकि सबको फायदा हो। जी शुक्रिया जैदी साहब। पहले तो ये 5 इंडस्ट्री थी, अब शायद 7 हो गई है। इनको ये भी सहूलत थी 9 सेंट की बिजली की, वो भी ख़त्म की गई। चले नया अदारा बन गया NCC, ये देखते हैं ये क्या करते हैं। कैप्टन माँ का जिक्र हुआ टेक्सटाइल में, मेरा भी तल्लक टेक्सटाइल से पाकिस्तान सिलिकन मिल्स एसोसिएशन गुजरांवाला से है, उसका भी मैं चाहूँगा उसको भी कमेटी का हिस्सा बनाएं, चैम्बर को बनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपकी बातें तो माशाल्लाह बहुत कारआमद हैं, देखते हैं इसमें अमल में इंशाल्लाह कितना होता है। तो इस मीटिंग का अपने इख्तिताम की तरफ जाते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा आप तशरीफ़ लाएँगे, आफाक अयूब साहब और वकास साहब बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के, तो ये सब भी होंगे, मैं भी होऊंगा इंशाल्लाह दोबारा मीटिंग में। कुछ चीज़ें जो समझ में आई हैं वो उस पर बात, तो इसके साथ ही मीटिंग का अल्लाह।